चलो स्टार्ट करते हैं. Let's start with the next question. Is my screen visible to all of you? चलो. So we'll do next question. This is a GLM question. Read करते हैं. A statistician wants to model the number of passengers boarding a bus from a bus stop close to a student residential area. They can think of three explanatory variables: which route it is at 8 a.m. or 9 a.m., if it is during the semester or not, and the temperature. The statistician has data for 20 days given CS1 passenger.r data. This file I have given you in the zip folder, and believes that the response variable follows the Poisson. So the response follows Poisson and three explanatory variables. So they want to see, they want to model the number of passengers. So Y variable is basically the number of passengers who are boarding a bus from a bus stop. So obviously number of passengers, it only can be discrete, it cannot be continuous, and it cannot be negative. So Poisson ही best suited है. अगर ये लाइन नहीं भी लिखा हुआ होता कि Poisson है, you should have understood that it will follow Poisson. ठीक है. After loading the R data, the data frame will with all variables will be available. तो आपको पहले तो let's take this CS1 passenger, control shift C and load it in our studio. This is answer number 3. ठीक है, देख लो. पैसेंजर्स लोड हो गए. एक सेकेंड, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्लीन दिस अप ताकि आप लोग को समझ में आए ढंग से. We have passengers, we have route, we have semester, we have temperature. If you want, you can also view this from here as well. See, we have 20 data sets. These are the number of passengers who are boarding at this particular time, who are in the semester or not, and the temperature during that time. ठीक है. State the linear predictor corresponding to the model specified with the following R code explaining all the relevant terms. तो बताओ क्या होगा. Linear predictor for term, temperature and semester कैसे बनाएंगे कोई भी एक जन. Yes, Jasmine. I have loaded the R file, but by writing the command of view, it is showing the error. क्या error है? Error in data view could not find the function view. Capital V लिखा है view में. Okay. बोलो temperature plus semester linear predictor क्या होगा? Anyone? We have two things. We have temperature, which can be any value, and we have semester, which can only be two values, semester, non-semester. Very easy.
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा आई प्लस बीटा इंटू टेम्परेचर, है ना। ठीक है, why have I taken alpha I? Because alpha I will depend on the type of semester. So it can take value 1 if it is semester, it will take value 2 if it is not semester. Easy. ऐसे ही करते हो ना, और कैसे करते हो बताना, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। लीनियर प्रिडिक्टर इज बेसिकली व्हेन यू आर सजेस्टिंग कि कैसे आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का इक्वेशन बना सकते हो, है ना। तो अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कैन टेक एनी वैल्यू, बट वेर एज आपका प्लस एक सेमेस्टर आता, तो हमने क्या किया, सेमेस्टर को वी हैव टेकन इन द इंटरसेप्ट इटसेल्फ, तो इंटरसेप्ट में ही टेम्परेचर को ले लिया हमने, इसीलिए अल्फा आई किए। तो दो इंटरसेप्ट बनेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेमेस्टर इट इज। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड टेम्परेचर क्रॉस सेमेस्टर। क्रॉस का मतलब टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर प्लस टेम्परेचर कोलन सेमेस्टर, तीनों चीज है। तो यहाँ पे एक इंटरैक्शन में आ गया टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड सेमेस्टर, तो ये कैसे चेंज होगा, एनीवन क्विकली जस्ट टेल मी। कोई भी एक जन बताओ, अनम्यूट करके। Alpha I plus temperature into beta plus SI, where SI could be a semester or non-semester. फिर से बोलना। Alpha I plus temperature into beta plus SI, where SI can take either semester or non-semester. But that is already covered in alpha I, na? Then what is the difference? Semester non semester का Ma'am, since we'll multiply it with temperature, so it मतलब तुम beta क्या would बोल have रहे an हो, extra term. ये हो गया प्लस Uh, Ma'am, in this only either temperature into beta plus SI. टेम्परेचर, अच्छा ओके, यू आर सेइंग बीटा इनटू एसआई। Temperature into beta plus SI. मतलब यू आर सेइंग ओनली दिस थिंग, यही तो। नहीं तो टाइप करके भेजो।
ठीक है. So what she is saying is temperature into, मतलब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ. तुम ये बोल रही हो, राइट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंस है. ये भी करेक्ट है, बट इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बीटा और एस आई है, कैन वी मेक इट इनटू वन. मतलब एस आई इज बेसिकली व्हाट, एस आई विल बी अगेन एनी वन कांस्टेंट वैल्यू विच विल टेक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर. कौन सा होगा, क्योंकि अब हमें सेमेस्टर एंड टेम्परेचर का भी रिलेशनशिप दिखाना है. So this is also correct. If you want, you can also do one more thing. Um, Instead of this, you can also write it like this. मतलब आप बीटा में ही आई ले सकते हो, तो बीटा की ही टू वैल्यूज हो गए. इंस्टेड ऑफ टेकिंग एस आई अलग से, यू कैन हैव बीटा. क्लियर? टेम्परेचर क्रॉस सेमेस्टर, तो ये जो पूरा था वो तो रहेगा ही, प्लस यू हैव अनदर थिंग विच इज रूट. तो अगेन आइदर यू कैन टेक दिस और यू कैन टेक दिस एनी वन, एंड उसके साथ आपको क्या ऐड कर देना है, एक प्लस. आप कुछ भी लिख सकते हो, गामा लेना है तो गामा ले लो, गामा आई. वेर गामा आई इज व्हाट, रूट, क्योंकि रूट भी हमारे पास 8 am है या तो 9 am है. ठीक है, तो आप रूट का भी अलग से लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो गामा आई. गामा आई डिपेंड्स ऑन, इट कैन बी 1, 2 डिपेंडिंग ऑन द रूट. ठीक है, इसका ना एक और भी तरीका होता है लिखने का, दोज हु वांट टू. जैसे आपका जो लीनियर प्रिडिक्टर है, you can also write it like this. You can write alpha, I'm just writing a for time being, alpha in plus beta 1 into x1 plus beta 2 into x2, where x1 is the temperature and x2 is the semester, depending, it can take either value 0 or 1. x2 will be 0 if it is non-semester, it will take value 1 if it is semester. ठीक है, दिस इज ऑल्सो. थर्ड वाला में हो जाएगा, सेकेंड वाला में हो जाएगा ये पूरा, प्लस यू विल हैव गामा इंटू x1 x2, जो हम लोग जैसे लिखते हैं. ठीक है, एंड ये हो गया सेकेंड वाला, प्लस गामा इंटू x1 x2. यू हैव थ्री basically parameters, 4 parameters in fact. फर्स्ट वाले में यू हैव 3 parameters, एक इंटरसेप्ट का, एक आपका टेम्परेचर का, और एक आपका सेमेस्टर का. हमने इस फर्स्ट वाले में क्या किया, हमने इधर पे वी मर्ज्ड टेम्परेचर, वी मर्ज सेमेस्टर इनटू द इंटरसेप्ट इटसेल्फ. ठीक है, यहाँ पे भी यू वुड हैव रिटन a plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus gamma into x1 x2, x1 x2 being the intercept, being the interact. ठीक है, एंड थर्ड वाले में बस एक एडिशनल टर्म आता है बीटा 3 into x. That's it. Is this clear? Yes, एक बार yes लिखो, so we move to the next part.
Next, fit a Poisson GLM to the data set for the model in part 1 part C. So आपको C में fit करना है. Label this as model 1. Your answer should include a summary of the fitted model. तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कौन सा फंक्शन बताओ? GLM इजी है. फॉर्मूला इज y on x. तो हमारे केस में व्हाट इज y? पैसेंजर्स. x टर्म्स क्या है हमारे? फर्स्ट क्या है हम लोग लेते हैं, doesn't matter, but temperature and semester, temperature plus semester plus interaction. So you can directly write temperature semester. ठीक है, टेम्परेचर इंटू सेमेस्टर वाला चीज डायरेक्टली लिख सकते हैं. प्लस यू हैव रूट. ठीक है, क्या और लिखना पड़ेगा इसमें नया? बाय डिफॉल्ट फैमिली इज गॉसियन. हमें क्या चाहिए? फैमिली पॉइजन. अगर आपको ब्रैकेट में लिंक नहीं मेंशन करना इट इज फाइन, बट सी फैमिली गॉसियन है. इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट फैमिलीज, आप नीचे जाओ, इधर एक फैमिली का ऑप्शन आएगा एंड क्लिक ऑन फैमिली. ठीक है, ये जब आप हेल्प टैब में सर्च कर रखे हो ना आपने, तो फैमिली में सी फैमिली में जाओ एंड यहाँ पे यू विल गेट पॉइजन लिंक लॉग. ठीक है, तो पॉइजन एंड ब्रैकेट में यू कैन राइट लिंक even though if you not write this it's fine because by default आपका log ही लेगा. We don't have to change. Nothing is mentioned. It's not there in the syllabus also to change. If until and unless they mention it clearly. ठीक है, इसको रन किया हमने मॉडल 1 को and they've asked us to run a summary of model 1. देख लो. ठीक है, we have the intercept, we have the alpha basically, we have beta 1. ये सेमेस्टर हो गया, बेसिकली बीटा 2 है. और यहाँ पे सेमेस्टर लिखने का ये मतलब है कि नॉन सेमेस्टर जो है वो चला गया है इंटरसेप्ट में, है ना. तो ये सेमेस्टर के लिए है. इफ बीटा 2 टेक्स अ वैल्यू ऑफ 1 मतलब वो सेमेस्टर है, अगर 0 है तो नॉन सेमेस्टर है. Then again, route is for 9 a.m. The 8 a.m. route is gone into the intercept again. And then you have the interaction, temperature and semester, which is the gamma term. I can show you by writing this. ठीक है, so this is your intercept. Beta 1 is this temperature wala, beta 2 is this semester wala, beta 3 is this root 9 a.m. wala, and G is this temperature and ये वाला. ठीक है, सबका स्टैंडर्ड एरर, Z वैल्यूज, P वैल्यू सब कुछ गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैरामीटर्स. चलो कोई भी एक जन क्विकली कमेंट करो.
एक एक करके कमेंट करेंगे। कितने मार्क्स का है? टोटल है 6 मार्क्स ना, तो आपका सेकंड पार्ट 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में आपके 2 फंक्शंस ही थे खाली। तो स्टार्टिंग विथ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का नहीं भी बोलोगे तो इट्स फाइन, बिकॉज इंटरसेप्ट यूजुअली हम लोग उसका सिग्निफिकेंस नहीं बोलते, इंटरसेप्ट एनीवे स्टेज इन द फॉर्मूला। स्टार्टिंग विद द टेम्परेचर parameter, whether it's significant or not, it is significant if it is significant if it is less than 5%, है ना? If the p value is less than 5%, because if you remember बीटा टेस्ट हम लोग करते थे, बीटा इज द स्लोप, स्लोप टेस्ट करते थे, तो उसमें हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता था? नल हाइपोथेसिस होता था कि स्लोप पैरामीटर या बीटा इज सिग्निफिकेंट, नहीं, इज नॉट सिग्निफिकेंट होता था, बीटा इक्वल्स टू 0 होता था। तो नल हाइपोथेसिस वाज बीटा इक्वल्स टू 0, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर वाला देखो, it is significant because it is less than 5%. You are rejecting null hypothesis. Rejecting null hypothesis मतलब beta is not equal to 0. ठीक है, this is significant. Temperature parameter is significant. Semester parameter is not significant. So semester वाला जो x2 है, मतलब beta 2 है, जो beta 2 है, that is not significant because again it is greater than 5%. Beta 3 is also not significant, again greater than 5%. And again coming back to the interaction, it is not significant at 5%. The interaction between temperature and semester is not significant. All of these we are considering at 5% level. ठीक है, all of these we are considering at 5% level. तुम लोग उधर से आओ, यहाँ पे क्लास चल रहा है, बहुत, इन सबको बोल दो, ठीक है? तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, बट इट इज क्लोज टू बीइंग सिग्निफिकेंट because it's very close to 5%, है ना? Yes, Meghna. मैम ग्रेटर देन 5% से तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना नल हाइपोथेसिस। हाँ, तो एक्सेप्ट करने का मतलब ही तो नॉट सिग्निफिकेंट हुआ ना, बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस में क्या था? बीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर बीटा इक्वल्स टू 0 में आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। अगर बीटा 0 है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अगर ये बीटा ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, राइट सर। गॉट इट? तभी मैंने बोला बीटा टेस्ट याद करो, क्या था? नल और ऑल्टरनेटिव। यस मैम, ओके, थैंक यू। बताओ, कहाँ डाउट आ रहा है? अब इसको कंप्लीट करो, इसको टाइप करो सब लोग। आई वेट, हो जाए तो यस लिखना चैट बॉक्स में। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज fit an improved model for the model in part 2A using your answer.
Label this model as model 2. Justify why model 2 improves model 1 by referring to the R output. अब यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें बताओ. Should we remove all variables and only consider temperature because that is significant? Check the p value. सबसे हाईएस्ट p value किस में आ रहे हैं? रूट में आ रहे हैं 70%, which is like very high. So it's very highly insignificant. So something which is very highly insignificant, we can remove that. Interaction is merely insignificant because it's यहाँ से मत आओ जाओ बार बार प्लीज. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग क्लास चल रहा है मेरा, उधर से जाओ. टेम्परेचर एंड सेमिस्टर का जो इंटरैक्शन है that is again very it's insignificant, but if you compare 5% के काफी close है, right? So it's close to being significant. So we should take temperature and semester. And if you're taking temperature and semester interaction, for that you have to also take individual terms. टेम्परेचर तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है, उसके साथ आप सेमिस्टर भी लोगे. आप सेमिस्टर क्यों लोगे? क्योंकि आपको इंटरैक्शन लेना है. ठीक है. और हम लोग ने क्या सीखा, हम एक एक बार में एक एक करके हटाते हैं, एक बार में पूरा नहीं हटाते. सो मॉडल 2 शुड बी. ये अगर आपसे रीजनिंग पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो आप उसका रीजनिंग भी ऐसे ही दोगे जैसे मैंने आपको समझाया. सो मॉडल 2 should be, once just copy this, ठीक है. यहाँ पे just do one thing, और मतलब यहाँ आप एक चीज कर सकते हो, यू कैन यूज द फंक्शन अपडेट. रिमेंबर हमने अपडेट फंक्शन यूज करा है. या तो आप अपडेट फंक्शन यूज करो, या तो आप यही पूरा करो बट यहाँ पे रूट हटा दो. ये करो या फिर do you remember update function? Anyone? Anyone who remembers the update function? Yes, ma'am. बोलो update. Update model 1, comma, dot मॉडल 1 को triple अपडेट dot, करना है, तो y वेरिएबल वही है तो डॉट हो गया. बोलो. dot, dot, टिल्ट डॉट minus, माइनस रूट. वेरी गुड. तो इसका मतलब जो y वेरिएबल है वो वही लेना है, जो x वेरिएबल है सारे वही ले रहे हैं, माइनस रूट कर दो. ठीक है. एनी वन यू कैन रन. सो वंस यू रन दिस यू हैव योर मॉडल 2. इसका इन्होंने समरी रन करने बोला है, देख लो. एंड जस्टिफाई व्हाई इट्स इम्प्रूविंग. तो क्या चीज चेक कर सकते हो इम्प्रूविंग के लिए? नल डेविएंस, रेसिडुअल डेविएंस चेक कर सकते हैं, एआईसी चेक कर सकते हैं. ठीक है. जनरली जीएलएम में हम एआईसी चेक करते हैं, रिग्रेशन में हम मल्टीपल आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर चेक करते हैं. वहां पे एडजस्टेड आर स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना होता है, यहाँ पे एआईसी को मिनिमाइज करना होता है. सो इसमें एआईसी आपका आ रहा है, यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट इफ यू वांट 60 पॉइंट समथिंग एंड मॉडल 1 का एआईसी आप चेक करो 62 आ रहा है. सो एआईसी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 62 to 60. So the new model has improved from the initial model. फिर यहीं से जा रही हो. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट करें.
You are given with a new model 3. क्या क्या दिया हुआ है इसमें? टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेमेस्टर है। तो देखो इन्होंने क्या किया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टेम्परेचर वाज सिग्निफिकेंट, टेम्परेचर सेमेस्टर वाज नियरली सिग्निफिकेंट, बट सेमेस्टर वाज नॉट। तो सेमेस्टर इन्होंने लिया ही नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो समीक्षा। मैम बट अगर हम इंटरेक्शन टर्म ले रहे हैं तो हम उसके इंडिविजुअल्स भी तो लेते हैं, इसमें हमने सेमेस्टर क्यों नहीं लिया It's फिर? not necessary to take. It's not necessary to take, but ideally we should. It's not necessary. Ideally we should, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं कि हमें लेना चाहिए, एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल का क्या इम्पैक्ट है, फिर इंटरेक्शन का क्या इम्पैक्ट है, उस वजह से वी टेक, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके मैम। इन्होंने लिया, ठीक है। Demonstrate that model 3 outperforms the models defined in part 1A and B. तो तीनों मॉडल अभी रेडी है हम लोग के पास, ठीक है। 1A 1A एंड 1B। आपको एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा टेम्परेचर सेमेस्टर का, एंड एक और मॉडल बनाना पड़ेगा टेम्परेचर इनटू सेमेस्टर का, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, आप लोग कॉपी कर लो, चलो। I will do one thing. Model 3. टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर सेमेस्टर, ये इन्होंने मॉडल 3 बनाया है। जो बाकी दोनों मॉडल्स है, मॉडल 1 का पार्ट ए एंड 1 का पार्ट बी, सो आई एम जस्ट राइटिंग मॉडल ए। दैट वाज, मैं कॉपी कर लेती हूँ इसको। दैट वाज टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर and model B is actually same as जो हमने पार्ट 2 में किया, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 3 में, ये हो गया। अब इसको भी रन कर लो। सो तीनों मॉडल्स आपके बन गए, देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछो। अब आपको तीनों मॉडल्स को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए व्हाट डू वी सी AIC, है ना। तो AIC निकाल लो, मॉडल $3 AIC, तीनों AICs आ गए आपके पास। किसका लोएस्ट है? टेम्परेचर टेम्परेचर इनटू सेमेस्टर वाले का लोएस्ट है? नहीं, मॉडल 3 का लोएस्ट है 59, इसका 60, बहुत कम डिफरेंस है ऑल्दो। सो मॉडल 3 हैज द लोएस्ट AIC when you compare it with the other two. So we can conclude that model 3 outperforms all the other models. ठीक है। फिर बोला है कमेंट, नहीं, कमेंट ऑन योर आंसर। So what comment we can give? जो अभी I think someone was saying कि although model 3 gives you the best result, although model 3 does not include the
model 3 gives you the lowest AIC, but it does not contain the main effect term, which is the semester. So despite this model gives you a better AIC, we can say that it is not a very great model. Yeah, it's better to include the main effect term which is semester, because उसमें और मॉडल बी में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो मॉडल बी बन जाएगा. बहुत ज्यादा डिफरेंस एआईसी में नहीं है. ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो कमेंट को. Could you please repeat the comment that you just said? नहीं, सो बेसिकली मैंने यही बोला कि मॉडल 3 आपका एआईसी लोएस्ट दे रहा है. ठीक है, बट here it does not include the main effect term, which is semester. So despite it gives you the lowest AIC, you can still use model B, because model B includes the main effect term and the difference in AIC is not much great. ये 59 है और ये 60 है, तो बहुत ज्यादा great difference नहीं है. Okay. And if you want, you can also write one more line that despite the fact that it does not include the main effect term, still it is suiting the data better compared to other models, even though it does not have the main effect term. So it's basically, we can say that यहाँ पे 1 mark है तो इतना नहीं लिखना, but basically we can say that when you want to include the interaction, it's not always mandatory to include the main effect term, although we say it should be included in terms of कि भाई अंडरस्टैंडिंग पर्पस से अच्छा रहे, बट जरूरी नहीं होता. ठीक है, कंप्लीट करो. यस लिखो.
खाली 2 लोगों ने यस लिखा है. Draw a suitable plot for the residuals of model 3 for checking the model's validity. Comment on the model in part 5A. तो कौन सा मॉडल बनाएंगे? And they have also for the residuals. So usually जब residuals का बात आता है ना, it's preferred that you make 5 part A लिखना मत भूलना. It's preferred that you make model 3 का first वाला plot that you have, which has your fitted values or predicted values on the x-axis, and you have the residuals on the y-axis. So residuals versus fitted. All right. So here, what are we checking? That what can we say? First of all, क्या क्या हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया? It should be patternless. So we can see it's haphazard, it's very random, randomly scattered around 0. So we can say that the residuals have no pattern. That is one thing. Second, it should have a constant variance. So we can say that ये जो red line which signifies the variance, so ये ऊपर नीचे हो रहा है, it's not going up or in one direction down. So it has a constant variance. Third, there is no as such outlier. ये 9 वाला जो है, this is not an extreme outlier. It's somewhere within the range of 2 minus. ठीक है, उस range तक रहने से it's fine. If you have a lot of residuals above 2, below -2, then it can be considered. Even though 1 भी होता है तो 2 -2 के range में we generally say -1.6 and 1.6 के range में रहने से it's fine. ठीक है, so we can say that the model is appropriate. Alright, ये पूरा चीज लिख लो. No pattern, haphazard and randomly scattered around 0. Constant variance because you see the red line. Okay, it's not going in one direction, it's going up and down, and no residuals. So model is appropriate. Calculate the predicted number of passengers. ये मैं कर रही हूँ, फिर I'll give you all time to finish. Calculate the predicted number of passengers for an 8 a.m. route during the semester at a temperature of 0 degrees Celsius using model 3. ठीक है, क्या बोला है? कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स. 8 AM होगा रूट, सेमेस्टर यस होगा, टेम्परेचर इज 0 एंड यूजिंग मॉडल 3. बट क्या मॉडल 3 में हमें रूट का जरूरत है? मॉडल 3 में रूट का जरूरत नहीं है. इज इट रिक्वायर्ड? मॉडल 3 में तो रूट है ही नहीं, तो अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे तो चलेगा. But since they have said we can mention it, what is the function that we need to use? Predict function. For that you need to make a new data frame. New data dot frame. ठीक है, टेम्परेचर ले लो 0. जैसे जैसे लिखा हुआ था ना इसमें वैसे वैसे ही लिखना है. सेमेस्टर लिखो सेमेस्टर. ठीक है,
रूट होगा 9 AM, 9 की 8 AM, तो 8 AM कैसे लिख रखा है इन्होंने? There is no space. And again, since this is character variable, 8 AM. ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया. Predict model 3 new dot data. ठीक है. अब जब हम लोग GLM डॉट प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट में भी ना 2-3 होता है. एक होता है GLM डॉट प्रिडिक्ट, एक होता है LM dot predict. When you do this predict dot GLM, you check over here. You have type either link or response. What do you need? Do you need link or do you need response? इन्होंने बोला है clearly that you need a predicted number of passengers. तो link नहीं निकालते हैं, link गलत होता है. We calculate in case of Gaussian, your link and response is same. But in case of other families of GLM, our link and response are not the same. जो link से आपका आएगा वो आपका आएगा log के terms में, because हमारा यहाँ पे link is log. Poison family link is log. देखो ना, if you remember link log है. तो जो आंसर अगर आप लिंक लेते हो टाइप लिंक, तो जो आंसर आता है that is actually log y, not y. We need y, so we will calculate response. It's not log y actually, it's log of the linear predictor. तो exponential of that करने से y आता है. I'll show you. ये आपका response का आंसर है 1.866. And if you do the same thing with link, तो आपका देखो 0.62 आ रहा है. आया आंसर मैच हुआ एक्सपोनेंशियल करने से. आप लोग अपना कॉपी खोलो, क्लास नोट्स खोलो. y इक्वल्स टू लॉग, जब लिंक लॉग होता है ना तो आप लोगों ने ईटा लिखा है. ईटा, ईटा इज द लिंक, ईटा इज द लीनियर प्रेडिक्टर, सॉरी, ईटा इज द लीनियर प्रेडिक्टर. जो भी आपने पूरा लिखा अल्फा प्लस बीटा 1 x 1 बीटा 2, तो वो लीनियर प्रेडिक्टर होता है. नाउ इन केस ऑफ गॉसियन, इन केस ऑफ गॉसियन आपका वहां पे लिंक जो है, लिंक देख लो, in case of Gaussian your link is identity, मतलब y is equal to eta, ठीक है. But in case of Poisson the link is log, so it is y equals to log eta, y equals to log of eta. तो जब आप यहाँ पे लिंक करते हो ना टाइप लिंक, तो आपका log eta का वैल्यू आता है. eta is what? लीनियर प्रेडिक्टर. तो log eta का वैल्यू आता है. आपको चाहिए y, आपको log eta नहीं चाहिए, आपको eta चाहिए खाली. तो आपको उसका एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा. log eta है, उसका एक्सपोनेंशियल करोगे तो क्या होगा? log n एक्सपोनेंशियल कट हो गया. तो आपका जो eta का वैल्यू आपको चाहिए था अल्फा प्लस बीटा 1 x 1, वो जो पूरा वैल्यू चाहिए था वो आ गया 1.86, है ना. Any doubt? Tell me yes or no. I hope you understand the difference between the type link and type response. And why is it same in case of Gaussian? Because it's link identity. In case of others, it will not be the same. If you want the predicted value, it will always be type response. Yes, is this clear? Tell me, please. Very good question.
क्लियर? नेक्स्ट करें, इसको फिनिश करो. चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई होप इट्स क्लियर. सारे टाइप के मैंने ट्राई किए हैं. एक और हम क्लास रखेंगे ऐसा सेम नेक्स्ट वीक, जहाँ पे वी विल टेक मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स. चलो. And actually produces the following summary of claim amounts and number of policies sold for 4 of her insurance clients in the last 5 years. So you have for 5 years, there are 4 types of insurers. There are 4 types of insurers and सबका आपको claim देख लो. Claim amounts given in $1 million, million pounds, and you have the number of policies. ठीक है. The policy is expected to be sold in the next year. Year 6 का दिया हुआ है. The data for years 1 to 5 are given in claims.r data. तो ये देख लो दिया हुआ है. कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने कर लिया कॉपी. अपना टेबल बुक निकाल लो जिनको याद नहीं है EBCD, उसमें क्लियरली इट्स गिवन which contains the claims data and the policies data. Calculate all these estimates under the assumptions of EBCD model 2. तो सब लोग निकाल लो टेबल बुक.
ठीक है, let me load this in our let me first remove all of these, थोड़ा clear हो जाएगा. चलो, so you have claims matrix and you have policies matrix. ठीक है, स्मॉल एन सारे अब ना हम लोग वो बना लेते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं. स्मॉल एन कौन सा होता है? नंबर ऑफ पॉलिसीज होता है, कॉलम्स होता है कि रोज होते हैं? columns. Very good. Columns, so n col of any one, you can do either policies or claims. So you can do policies. Capital N बचा हमारा n रो, which is 4. ठीक है, 4 इंश्योरर्स हैं and 5 years है. नेक्स्ट हमें निकालना होगा x एवरेज, है ना. आपके पास क्लेम अमाउंट्स है, क्लेम नंबर्स है, फिर आप क्लेम पर नंबर निकालते हो, विच इज क्लेम मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय पॉलिसीज मैट्रिक्स. तो ये आपका x आ गया. यू कैन चेक x का वैल्यूज. अरे चेक x का वैल्यूज. आगे का खुद से करो तो.
नेक्स्ट क्या निकालना है, कौन बताएगा? टेबल बुक लिख के बताना। PI बार XI बार XI बार कैसे निकलेगा? मैम PI बार निकालेंगे राइट, सम ऑफ पॉलिसी रोल। एक ही बात है ना, आपको XI बार भी तो निकालना ही है, दोनों ही निकालना है। मुझे XI सुना है इसलिए मैंने XI लिख दिया, दोनों ही निकालना पड़ेगा ना आपको तो। XI बार नहीं चाहिए? नीचे चाहिएगा ना हमें, हाँ हाँ जब हम एस निकाले ये निकालेंगे वेरिएंस। एस एस निकालेंगे तब चाहिएगा ना हमें। बोलो। जो आपका क्लेम्स वाला है उसका हर एक का रो का सम, इट्स बेसिकली द मीन। XI बार इज द मीन, तो उसका रो का सम डिवाइडेड बाय पॉलिसीज का रो का सम। ठीक है, तो रो सम क्लेम्स मैच करो। इसके बाद पीआई निकालते हैं। बताना पीआई कैसे निकालेंगे? पीआई इज एवरी उसका इंश्योरर का। सो आप कर सकते हो रो sums of policies, that's your PI। एंड इसी के साथ P भी निकाल लो, which is nothing but सबका sum। So either you can do sum of policies matrix or sum of PI also। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं? P स्टार। हम कौन सा कर रहे हैं? हम सेकेंड वाला कर रहे हैं ना, EBCD 2। तो P स्टार कैसे निकलेगा? फॉर्मूला देख के बताना। सम हम्म PI बार हम्म into 1 minus PI bar by P bar and the whole thing divided by capital N into small n minus 1। ठीक है, सो P sum of PI into 1 minus PI मीन है ना, तो मीन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, PI बाय P करके। ठीक है, ये पूरा चीज डिवाइडेड बाय यू डू N into N माइनस। सही है, देख लेना एक बार। PI इज पॉलिसीज वाले का हर एक का सम, तो P1 P2 P3 P4। Actually it's PA PB PC PD and then divided by P which is the entire sum। तो एक तरीके से वही चीज है, इंडिविजुअली 4 का होगा एंड देन सबका सम कर लेंगे, है ना। दैट्स योर P स्टार। चेक करना। यस मैम। उसके बाद अब ये सब निकल गया, M निकाले। M निकाले विच इज
एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा कैसे निकलेगा? बताना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा X bar. x bar. एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा इज नथिंग बट योर x bar, और x bar कैसे निकालेंगे? It's very easy. Either you can do mean of x or you can do sum of claim matrix divided by sum of the entire policy matrix. वो लिख सकते हो या p भी लिख सकते हो, क्योंकि p में हमने सम ही दे रखा है। तो ये हो गया m। अब आप लोग यहाँ लिख देना ऐसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ m थीटा इज इक्वल टू जो भी 0.44 आ रहा है वो पूरा लिख देना। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग कुछ नहीं तो ऐसे ही लेते हैं। चलो कैसे निकालेंगे? कोई नहीं बताएगा। क्या करते हैं देखो, क्वेश्चन में क्या मतलब, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो कैसे करते हैं। इट इज सम ऑफ जो आपका पॉलिसीज है इनटू x माइनस एक्स आई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस वन, एंटायर थिंग डिवाइड बाय n। ऐसा कुछ है क्या? विच इज मीन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय x जो हमने निकाला है माइनस एक्स आई बार जो हमने निकाला है, इसका स्क्वायर करना होता है। ठीक है। डिवाइडेड बाय ये पूरा चीज, ये जो पूरा है ना यहाँ रो सम से लेके यहाँ तक, इस पूरे का मीन, इस पूरे का मीन करने का मतलब है यू विल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, विच इज कैपिटल एन। क्योंकि देखो अंदर देखो रो सम्स के अंदर क्या है, पॉलिसी मैट्रिक्स है, उसके इंडिविजुअल पॉलिसीज इनटू एक्स आई माइनस एक्स आई बार। तो ऐसे करके इंडिविजुअली सबका उसका स्क्वायर, फिर सबका आ गया इंडिविजुअली हर एक वैल्यू का, उसका आपने रो सम ले लिया एंड डिवाइड कर दिया n माइनस वन से। ठीक है। एंड देन इंटायर थिंग का मीन लेने का मतलब है इंटायर थिंग डिवाइडेड बाय यू आर डूइंग
मतलब रो सम्स आ रहे हैं ना आपके, 4 आ रहे हैं वैल्यूज, तो 4 वैल्यूज उसका ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 विच इज कैपिटल N। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाहर भी यू कैन टेक सम एंड डिवाइड बाय N भी कर सकते हैं, कैपिटल N, यू कैन डू दैट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मीन आई शो यू। ये हो गया। एस का आंसर निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, देख लो, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा। I hope it will give us the same answer. Let's see. See, it gives you the same answer. So any one you can do. Okay. This is your expectation of S square theta. Any doubt? Then finally, variance of m theta. Variance कैसे निकालेंगे? m आ गया है, summation of again summation of policy. हाँ बोलो. I think Meghna, you want to say something? नहीं मैम, गलती से हो गया। summation of वो पूरा पॉलिसी वाला जो मैट्रिक्स है, that multiplied by x minus m का whole square divided by n into n capital N minus 1 minus s, and entire thing divided by, मतलब उसका सम लेके divided by तीसरा। ये बहुत इजी है। EBCT is something which is easy, but आप उसको I don't know why क्यों डिफिकल्ट बनाते हो। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ x minus xi bar it's x minus m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पूरे का सम रहता है, डिवाइडेड बाय ये पूरा चीज माइनस एस। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे हो गया, ये पूरा है एंड देन वी हैव दिस माइनस एस एंड देन एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय बी स्टार। चेक करो आंसर, देखना यही दिया हुआ है। दिस इज वेरिएंस ऑफ m थीटा। कैलकुलेट क्रेडिबिलिटी फैक्टर्स। क्रेडिबिलिटी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ZI करो, यहाँ तक करो, जिनका नहीं हुआ है करो। आई विल गिव यू टाइम।
Very good, Meghna. ZI is PI by PI plus S by V. अच्छा, ना, ठीक है, चेक करो. These are the credibility factors. Calculate the expected claim amounts for each of the 4 insurers in year 6. So expected claim amount will be, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? Premiums. Once you have that, you can have the expected. P निकालना है sales and then you multiply. Credibility premium निकालना है पहले, which is ZI into XI bar plus 1 minus ZI into M. ठीक है. XI bar is हमारा खुद का sample mean, M is the population mean. हम अपने सैंपल मीन को ZI वाला वेट्स देते हैं एंड पॉपुलेशन मीन को 1 माइनस ZI का वेट्स देते हैं. ठीक है. वंस यू हैव दिस, चेक कर लो क्रेडिबिलिटी प्रीमियम्स. ठीक है. ये जो क्रेडिबिलिटी प्रीमियम निकला है, दिस इज पर यूनिट ऑफ पॉलिसी, पर यूनिट ऑफ रिस्क. तो इसको हम लोग को नंबर ऑफ पॉलिसी से मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. तो आपका ईयर 6 पॉलिसीज ले लो. 1920. ये हो गया. आफ्टर दिस यू कैन कैलकुलेट. मल्टीप्लाइड बाय. ठीक है. क्योंकि पहले क्रेडिबिलिटी प्रीमियम निकालना है हर ईयर को, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरर का क्या क्रेडिबिलिटी प्रीमियम है. वंस यू हैव दैट, दिस इज क्रेडिबिलिटी प्रीमियम. आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेटिंग क्रेडिबिलिटी के ऊपर में, कैलकुलेटिंग क्रेडिबिलिटी प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क वॉल्यूम. Once you have that, you have the sales figure, the policies figure, multiply that to get the claim amount. आपको XI निकल रहा है ना प्रीमियम्स वाले से, तो आपको तो P और XI मिला के आपका मल्टीप्लाई करके आपका क्लेम आ रहा था, तो वैसे करके निकालते हैं. ABCD मॉडल 1 में डायरेक्टली आपका आंसर आता है. डोंट हैव टू मल्टीप्लाई और एनीथिंग. This is not the final answer. You will have to write. Therefore, in year 6, the claim amounts for each of the insurer will be insurer A equals to 78.38 million pounds. क्योंकि remember, it's in million pounds. ठीक है, वो लिखना पड़ेगा. देख लो, इसको फिनिश करो. मैम ये लास्ट पार्ट में 10 मार्क्स के लिए इतना ही होगा. तुम्हें लिखना पड़ेगा ना एक एक चीज. जैसे तुम यहाँ पे तुम जब लिख रही हो कि ये प्रीमियम कैसे निकले, तो you have to write the credibility premium per unit of risk volume is given by, then you write this, you get the answer. Then you write your 6 policies are given by this, and then you finally multiply the same. लिखना पड़ेगा to get the claim amount. And then finally again वो जो पूरा million pounds में आपको लिखना है expected payout, expected claim for each insurer उसका. तो देखो वही है ना, CS1B में यही होता है. आप देखना कभी आपको कोई चीज के लिए तो 10 मार्क्स मिल रहा है, कोई चीज के लिए 4 मार्क मिल रहा है, 3 मार्क मिल रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इस वजह से दे गिव यू गुड मार्क्स. ठीक है, बट नॉट ऑलवेज दे गिव यू 10 मार्क्स.
In some cases, they might not give you 10 marks. Okay? That is why CS1B is easy if you prepare well. क्योंकि comments आते हैं but उतने comments नहीं आते हैं if you compare with other paper भी जो है. Let's do it till here for today. We'll have one more such class. I will be mostly taking up IEI paper की questions मैं लूंगी. But it's more or less CS1B में बहुत difference नहीं आता. And I will take some more different kind of questions. Maybe multiple regression करेंगे. And we can do more questions on confidence interval. And we will do PCA का question. That's the third thing. और एक टॉपिक मैंने सोचा था PCA, confidence interval, multiple regression, and maybe we'll do something more of hypothesis में and confidence में आपने जो एक additional part पढ़ा था वो वाला. तो three four questions we'll do new kind of questions. GLM I've taken a very good question today. If possible, I'll do one more GLM also. ठीक है? Do you all have any doubts? Okay, let's do it till here. We'll meet in the next class. Thank you. Bye bye.